Earlier of Lalu's party, now in the BJP. He beat Meesa Bharti in Patna. I want to go across now to my colleague Kamaljeet Sandhu, who's got senior leader of the Janata Dal United, KC Tyagi, with her. Kamaljeet, what does KC Tyagi, who's the Delhi face of the Janata Dal United, feel about Nitish's decision to step down? KC Tyagi, so what really led to this resignation? Was this pressure from Paswan, Sushil Modi, or was it just the rebellion of the MLAs that we saw recently? None of them, only the moral grounds. ये किसी के दबाव में या पार्टी के किसी विधायक के दबाव में नहीं हुआ है। कल ही ये तय हो गया था कि जनता का मैंडेट हमारे पक्ष में नहीं है। इसी तरह के हाई मोरल ग्राउंड्स को लेकर के श्री रामकृष्ण हेगड़े ने भी, जो उस समय हमारे जनता दल के, जनता पार्टी के नेता थे, उनको जब 28 में से 4 सीटें मिली तो उन्होंने इन्हीं मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दिया था और चुनाव कराए थे और उसके बाद वो 2/3 बहुमत से जीत करके आए थे। Sir, very clearly JDU was decimated in Bihar. What is the next move? Do you plan dissolution? Do you plan actually having a new leader in place of Nitish Kumar? What is the plan of JDU going to be? No, you are going far ahead. There is no question of changing the leader. Where he has submitted the resignation. He has recommended the dissolution of the House because we are in the majority and we are seeking a fresh mandate from the masses. One final question, sir. If we really talk about this entire development which has taken place, what do you think is the road ahead for JDU? Have you surrendered to Modi's powers in that sense? You have agreed to that mandate. So that means that Modi has become much more powerful even in Bihar? Neither छोटा मोदी और बड़ा मोदी कोई भी पावरफुल नहीं बन रहे हैं। मोरल ग्राउंड पे दिया हुआ इस्तीफा है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आपके सभी चैनल रोज़ कहते थे कि बड़ा वोट मोदी के लिए, छोटा वोट नीतीश कुमार के लिए, और 69% इलेक्ट्रेट ने चाहा है कि नीतीश कुमार जो है कम बैक होने चाहिए। ऐसे ही रामकृष्ण हेगड़े ने किया था। उन्हीं परंपराओं का वाहन करते हुए हमने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया है। हम ना किसी से डरते हैं, ना हम किसी से घबराते हैं। In assembly, do you think you will come back to power with a thumping majority? Of course. चूँकि आप ही लोगों के चैनल कहते थे कि 69% लोग नीतीश कुमार को वापस चाहते हैं। Well, thank you so much for speaking to us. Obviously, the JDU representative KC Tyagi very much in favor, saying a lot of developments are taking place, but at this point of time, recommending a dissolution, it means a lot of changes will take place, but they are also expecting a thumping majority for JDU once state assembly elections take place. With camera person DK Sharma, this is Kamaljeet Sandhu in Delhi for Headlines Today. It's interesting. There we saw KC Tyagi make it clear that the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, recommended dissolution of the assembly. Now the onus is on the governor to either accept that recommendation, or he could also alternatively invite another party to form the government. Remember, the BJP has more than 90 MLAs. The LJP has half a dozen. That adds up to less than 100 MLAs. Not enough to reach the tally that Nitish Kumar had. Most definitely not enough to be able to form the government by themselves. They could try and break the Janata Dal United, because Janata Dal United has many disgruntled elements who've been unhappy with Nitish Kumar's style of functioning. These are live pictures from the Chief Minister's residence. Nitish Kumar getting set for this press conference where he will explain the circumstances under which he stepped down. We're expecting this to start in a few moments from now. But the reality is, if an alternative formation like the BJP were to try and split Nitish's party, Nitish would get even more sympathy. Therefore, it is highly possible that the Bharatiya Janata Party will not try and fish in troubled waters, would instead ask for a clean election and hope that the people of Bihar will repose the same sort of faith that they did in the current Lok Sabha elections. You can blame Nitish Kumar for preempting the inevitable, but you cannot take away the fact that he has scored a moral brownie point here by showing the courage to step down. Not many leaders would of their own accord ever give up a position in power. Nitish Kumar has done that. His press conference is about to start. Let's listen to what the Bihar Chief Minister is about to say. I think it's taking a couple of moments for the press conference to settle down. In the meanwhile, I want to go across to Javed Ansari. He's with us. Javed? Okay, I think it started, so just listen to him first. मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कल जब लोकसभा चुनाव के रहे थे, उस दौरान
मीडिया की कई मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल जब लोकसभा चुनाव परिणाम आ रहे थे उस दौरान मीडिया के कई मित्रों ने संपर्क किया था और ये जानना चाहा था कि मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है या नहीं। तो मैंने कल एक वाक्य की अपनी टिप्पणी की थी कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं और ये हमने बताया था कि कल बातचीत करेंगे। तो आज आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। बिहार में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मुझे लेना भी चाहिए। और उसी के मद्देनजर जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं और चुनाव के दौरान हमने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए, जबकि एक बात कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पूरा का पूरा चुनाव अभियान इस प्रकार का था जिसमें मुद्दों पर चर्चा कम थी, नीतियों पर बात कम हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा था, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी। शायद इस स्तर का चुनाव प्रचार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा था। लेकिन इस दौर में भी जबकि हम लोगों के ऊपर भी तीखी टिप्पणियां की गई थी, हमने मर्यादा का पालन करते हुए और चुनाव अभियान हमने मुद्दों पर केंद्रित किया था और जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया है उसी के आधार पर हम लोगों के बीच गए थे समर्थन मांगने के लिए। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया और इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। ये जो चुनाव नतीजे हैं उसका विश्लेषण विस्तृत तौर पर तो बाद में किया जाएगा और हम लोग अपने पार्टी में भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो पूरे बिहार में ट्रेंड देखने को मिला और जो चुनाव नतीजे आए हैं वो उसको प्रमाणित करते हैं कि इस तरह का कॉम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन शायद ही कभी इस देश में हुआ। तो कुछ इसके जो स्वरूप सामने आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए शुभ नहीं। लेकिन चुनाव होता है और इसका जनादेश होता है, जनता ने वोट किया है और जनादेश का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस जनादेश का सम्मान किया है। और जनादेश में जो उसके अंतिम परिणाम हैं उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तब वो सरकार चलाएंगे और सरकार बनाना है और देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि उन गंभीर मुद्दों पर लोग ध्यान देंगे और चुनाव के दौरान जितनी बातें कही गई है, जो युवा पीढ़ी को सपने दिखाए गए हैं उसके अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं,
और फिर जितने तरह के वायदे किए गए हम लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का अनुभव सब लोग करेंगे। तो हमारी पूरी शुभकामना है और ठीक ढंग से काम करें और हम लोगों को अपने स्तर पर हम अपने काम को और पार्टी के स्तर पर जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उसके मुताबिक हम अपना काम आगे करते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमने मुख्यमंत्री पद से और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा को भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की गई। विधानसभा को भंग करने की हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस विधानसभा को गठित करने के लिए जो 2010 में अभियान हुआ था, उसमें एक मेरी प्रमुख भूमिका थी और मैं नहीं चाहता हूं कि इस विधानसभा को भंग किया करने की सिफारिश की जाए, इसलिए हमने भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की। हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वैकल्पिक सरकार, कोई भी सरकार बनने का रास्ता खुला हुआ है। और जो भी प्रक्रिया होती है विधानसभा में, दलों की जो संख्या है उसके आधार पर जो भी प्रक्रिया होगी, महामहिम राज्यपाल महोदय उसको देखेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, सरकार का फॉर्मेशन और जो विभिन्न दल हैं, मैंने त्याग पत्र दे दिया है और कल हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक भी 4 बजे बुला ली गई। तो इसके आगे जो कुछ भी भूमिका पार्टी की होगी वो इन सब चीज़ों पर बात होगी। और आज हमारी बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से काफ़ी देर हुई है और सब लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद, प्रदेश के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद और कतिपय अन्य साथियों के साथ जहां उपलब्धता के आधार पर जिनसे परामर्श संभव था उनसे परामर्श करने के बाद हमने अपनी राय रखी है और हमारे इस राय पर सहमति प्रकट लोगों ने की है। और तत्पश्चात हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए समय मांगा और 3 बजे के बाद 3:15 बजे करीब मुझसे मिले। तो हमने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बता दूं। मुझको अपनी तरफ से जितनी बातें करनी थी वो मैंने की। मुख्यमंत्री जी, ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, तो क्या ये आप उचित समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर आपने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से? हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हमने दे दिया। 5 साल की विधानसभा है, इसलिए आपने ठीक कहा। उस विधानसभा को हमने कोई जिसको कहिए कि परेशान नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 5 साल का मैंडेट था, ये बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन पिछले वर्ष हुए और उसी आधार पर हमने आगे सरकार का काम जारी रखा था। और विधानसभा में बहुमत एक बार तो विश्वास मत के दौरान और उसके बाद बार बार ये बात स्पष्ट हो गई थी, बहुमत का कोई संकट नहीं है, इसलिए सरकार चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसकी जो जिस राजनीतिक जो नतीजे आए हैं चुनाव, जो राजनीतिक नतीजे हैं, उसकी नैतिक जिम्मेवारी हमने ली इस लोकसभा के चुनाव। तो क्या आप फिर से अगर नेता चुने जाते हैं जेडीयू के और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको बहुमत है, तो क्या फिर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बहुमत का दावा हमने अपने व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया, पार्टी हमने जो आज स्थिति थी, जनता दल यू जिसे सीपीआई का समर्थन था, इस सरकार को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, सरकार को कतिपय निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे निरंतर लगातार। तो उस नाते पूरे तौर पर और आज भी जो विधानसभा की स्थिति है उसके मुताबिक
बहुमत के आंकड़े पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनी नैतिक जवाबदेही मानता हूँ, क्योंकि चुनाव अभियान का हमने नेतृत्व किया अपनी पार्टी का। और पूछिए तो जनता दल यू और सीपीआई गठबंधन का चुनाव अभियान का मैंने नेतृत्व किया और सभी जगह हम गए, 214 मीटिंगों में हम गए। और चुनाव अभियान के पहले भी, उसके पहले भी एक यात्रा निकली जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर थी, लेकिन वो बीच में होली और कतिपय लॉजिस्टिक कारणों से उसके 4-5 दिन के कार्यक्रम नहीं किए जा सके। उसको चुनाव अभियान के दौरान उन जगहों पर भी हमारा कार्यक्रम हुआ। तो ये सीधे फ्रंट से इसको हमने लीड किया था, इसका नेतृत्व हमने किया था। तो इसके जो भी नतीजे आए हैं उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है। वो ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि दोबारा अगर आपको नेता चुना जाता है तो क्या आप मुख्यमंत्री फिर बनेंगे? कल जनता दल विधानमंडल दल की बैठक, जनता दल की विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जा चुकी है कल 4 बजे, और विधानमंडल दल में उसके संबंध में विचार। नहीं, आप इससे इनकार नहीं करते हैं ना कि आप दोबारा नेता अगर चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे? इनकार देखिए, इस बात को समझ लीजिए, मैंने जब त्याग पत्र दे दिया है तो त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन उसके आगे जो आपने बात की 5 साल का टेन्योर, तो अब जो विधायक दल की बैठक होगी वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मैं आज की तारीख में इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर मैं त्याग पत्र दे चुका हूं, और त्याग पत्र का निर्णय कोई भावना के प्रवाह में लिया गया निर्णय नहीं है। यह निर्णय बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए उसकी नैतिक जवाबदेही लेकर की गई है। तो इसके बाद यह प्रश्न मेरे ख्याल से पैदा नहीं होना चाहिए। पार्टी में आपका रोल क्या रहेगा? मेरा रोल रहेगा, पार्टी के हम सदस्य हैं और पार्टी के साथी हैं, जितना आज रोल है उससे ज्यादा ही कुछ रोल होगा। तो क्या रोल का मतलब कभी भी पद से नहीं होता। आप मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे? आपको लगा है कि आपको फिर से कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा, तो क्या उसके लिए तैयार हैं? हमारे ख्याल से विधायक दल के सदस्य आप नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल ही जिसको कहिए अप्रासंगिक है मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि मैंने तो त्याग पत्र दे दिया, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ और ये नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए मैंने दे दिया है। मैं विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से उसको दुरूह नहीं बनाना चाहता हूं, और विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से मैं उनको किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं करना चाहता हूं, और उसको किसी तरह से मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी के साथ क्या गलती हुई आपकी? बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्या गलती थी? बिल्कुल सही निर्णय था। अच्छा कि आपने सवाल पूछा। यह निर्णय तो इतना जरूरी था, और वह निर्णय कोई रणनीति के तहत लिया गया निर्णय नहीं था। वह निर्णय सिद्धांत के आधार पर लिया गया था, और आपको अच्छी तरह याद है कि उस निर्णय को लेने के उपरांत स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा था, और उस निर्णय की पृष्ठभूमि महीनों से तैयार हुई थी। इसलिए कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, और सोच समझकर और अपने सिद्धांत के आधार पर। मुझे अफसोस यह हो रहा है, और इस चुनाव अभियान के दौरान भी हमने देखा कि अब तो कोई आइडियोलॉजिकल लाइन ले ही नहीं सकता। इस तरह की पॉलिटिक्स का एक दौर चलाया गया है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल, यानी कोई मतलब नहीं सिद्धांत का। हम लोगों की भावना है, यहाँ पर एक रणनीति के तहत बगैर अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज किए हुए हम लोगों ने तालमेल किया था। केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए थे, यहाँ भी सरकार चला रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टेज लगा कि अब उसको हम कायम नहीं रख सकते, तो उसके बाद हमने रिश्ता तोड़ा था। ये तो आइडियोलॉजिकल इशू है, ये कोई वोट के हिसाब से नहीं। कई विश्लेषण होते हैं, ये निर्णय इसलिए लिया गया, ये उनका आकलन हो सकता है, ये हम लोगों का निर्णय का आधार नहीं। देश का प्रधानमंत्री कोई वोट को देख करके कि ऐसा वोट होगा, उसके आधार पर ये निर्णय नहीं। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत है ही नहीं, और वो स्टैंड जो हम लोगों का बीजेपी से अलग होने का स्टैंड था, वो एक सिद्धांत पर आधारित था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड था, और एक बार नहीं अनेक बार
हमको ऐसा लगा है कि हम लोगों ने निर्णय लिया वो विंडिकेट हुआ। इसलिए आज की तारीख में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। परिणामों के आधार पर हम अपने निर्णयों को नहीं आंकते, हम निर्णय लेते हैं। परिणाम कभी अच्छे आएंगे, कभी अच्छे नहीं आएंगे। तो किसी भी निर्णय से परिणाम अच्छे आ गए तो वो निर्णय अच्छा हो गया और सही हो गया, ये हम नहीं आकलन करते। निर्णय तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन का। हाँ, तकलीफ ये होती है कि अब कोई आइडियोलॉजी की बात करता है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेता है, तो एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई मजाक नहीं, हम लोग तो झेलते रहे विश्वासघात का आरोप, और बार बार कहते इसमें विश्वासघात क्या है। विश्वासघात हुआ भी तो उनकी तरफ से हुआ। जो विवादित मुद्दे थे या जो बातें थी, हमारे सेंटीमेंट को, हमारे स्टैंड को जानते थे। जब उन्होंने उसको इस पर इंसिस्ट करना शुरू किया तो हमारे लिए अलग होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब अगर वो सफल हो गए तो इसका मतलब है कि वो सही थे और हम गलत हैं। ये निर्णय के आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो निर्णय का आधार था आइडियोलॉजिकल, उस आधार पर ये मायने ही नहीं रखता परिणाम क्या आए। परिणाम जो भी आए हैं इसका हम सब नरेंद्र मोदी क्या कम्युनल है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का कम्युनल है? व्यक्ति पर इतने दिनों से हमने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है। जनादेश मिला है, वो सरकार की कमान संभालेंगे और देश में जो इतनी विविधताएं हैं इसका सम्मान करते हुए लोग आगे बढ़ें। किसी को मैंडेट मिला है उस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता। अपने बारे में इलेक्शन में तीन चार एक एक करके कहिएगा तो बात। सर इलेक्शन में आपने बिहारी नजदीक है इसलिए नहीं क्या बोलूं। नेतृत्व परिवर्तित कर क्या लगता है, नेतृत्व बदल के बिहार में पुनः जेडीयू को सरकार बनाना चाहिए? अब तो सारी बात कर दिया। ये पूरी रामायण खत्म, सीता की उनकी बड़ी बात हो गई। अरे हम तो विधानसभा भंग नहीं किए, आपको शुरू में ही बता दिया। इस विधानसभा से सरकार बन सकती है, हमने उसका मार्ग नहीं अवरुद्ध किया। और कल विधायक दल की भी बैठक है, क्यों नहीं बन सकती? ये भी हमको कहना पड़ेगा, तो स्पष्ट है। आपके नजरिए से कौन किसे होना चाहिए पार्टी में नया मुख्यमंत्री? अब ये हम आपको कैसे बता दें? सर पूरे इलेक्शन में आपने बिहारी अस्मिता की बात की, विकास की बात की। ये दोनों मुद्दे जो आपके बिल्कुल दिल के करीब थे, ये दोनों मुद्दे मोदी लहर में कहीं कमजोर पड़ गए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझको कुछ नहीं लगता। मुझको यही लगता है कि हमने मर्यादित और नीति और सिद्धांतों पर आधारित कैंपेन किया, काम के आधार पर। उसको समर्थन नहीं मिला, ये तो जनता का फैसला है ना। जनता से कोई, जनता के ऊपर कोई थोड़ी लोकतंत्र नहीं। उन्होंने जो भी फैसला दिया वो सोच समझ करके दिया। हम लोगों ने तो अपनी बात रखने में कोई कमी नहीं की, हम लोगों ने अपनी बात कही। बीजेपी के खिलाफ पूरे चुनाव में मजदूरी मांगा, क्या आपको लगता है कि आपको मजदूरी नहीं मिली जो तो हम बाहर जा रहे हैं? पिछले 8 साल में जो इसलिए तो हम बाहर जा रहे हैं। मंगनी में खटा लिया सर। There were reports of dissent in JDU. JDU MLAs have been openly saying that they are not happy with the Publish it. You fully and frankly publish everything, whatever you get information. So they have been accusing you of Press is free here, so I don't have any comment to offer on that. You are free to publish whatever you come to know, or you get information from anywhere. अब नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, पूर्णिया की रैली में उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। तो क्या आप अब अपेक्षा रखते हैं बीजेपी से, यहाँ स्टेट यूनिट से और वहाँ नरेंद्र मोदी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें? हमारी तो लगातार की मांग रही है और हमारा अभियान रहा है, और इसके बारे में वो समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहे बीजेपी के लोग। लेकिन फिर भी जो कुछ भी कहा है तो अब जरूर बिहार की जनता उम्मीद करेगी कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके मुताबिक वो काम करे। सुशील मोदी लगातार दावा करते रहे कि जेडीयू के 50 विधायक उनके साथ थे। अब तो मौका खुला है, अब तो मौका सामने है, हमने तो इस्तीफा कर दिया। कल 4 बजे फिर बन रहे हैं भाई, हमने तो मौका दिया हुआ है, हमने तो त्याग पत्र दे दिया। किसके पास कौन है करे।
लेकिन आपको लगता है कि वैकल्पिक सरकार नहीं है, वैकल्पिक सरकार बनाने की परिस्थितियां है या फिर चुनाव होना चाहिए? आपको इतने देर में यही बात पूछने का मौका मिला। चुनाव हम चाहते तो हम रिकमेंड कर सकते थे, हमने तो रिकमेंड नहीं किया, हमने तो छोड़ दिया है। 1000 तरह के मामले सामने आए हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना कर ले जो करना चाहता है। भाई हमने तो गुड बाई कर दिया, अब बाकी जिनको जो करना है करें। अपने 8 साल के कामों को कैसा आपके पत्र लेके आप इतना मुस्कुरा क्या रहे हैं जो कम अरे हम अभी के लिए कर रहे हैं, क्या गम है जिसको हम अभी के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि अब आप लोग भी आराम कीजिए। क्या गम है जिससे छिपा रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? कोई सवाल नहीं है। चौधरी जी हम कह रहे हैं दोबारा कल भूखे नहीं जाना होगा। That's Nitish Kumar, former Chief Minister of Bihar. They're baiting the Bharatiya Janata Party, asking them to step forward to form the next government in Bihar, saying, I haven't recommended dissolution of the assembly. If anyone wants to try, they are free to do so. Nitish Kumar realizes that the BJP, which has just above 90 MLAs in Bihar, even with the support of the LJP, which has 6 MLAs, is still short of 100, let alone coming close to the majority mark. They've left it to other parties to try. He's of course hoping that the assembly will be dissolved and elections will be called, and he will invoke the sympathy factor in case anyone tries to wean away his MLAs. I want to welcome to this program this evening Veer Sanghvi, Shiv Vishwanathan. I hope the both of you got some sleep. Veer? A little bit. Little bit. But probably more than you have. We brought you here to talk about the Modi Ganga Aarti in Varanasi this evening. Just give me a moment. Rajiv Pratap Rudy is speaking at this time. Okay, that was Rajiv Pratap Rudy. He was very nervous, very uncertain ahead of his election in Chapra, ultimately emerging a giant killer, felling Rabri Devi. But Veer Sanghvi, we brought you in to talk about the Ganga Aarti. Now, of course, the focus very political. Is Nitish Kumar trying to invoke the sympathy factor, or is he just preempting the inevitable? Well, like all the best resignations, this is a mixture of an emotional appeal, a certain amount of pragmatism, and an attempt to take the high moral ground. I mean, the BJP would almost certainly have tried to topple Nitish. He would have gone, the BJP couldn't have formed the government, there would have been elections. He would have gone into that election as a man who opposed Modi, who was the rising sun, and tried to cling on to his office. At least now he's seen as a pragmatic guy, a moral guy, a guy who said, look, I've listened to the verdict of the people, decide. And he will hope now in the coming election campaign, because inevitably there will be an election, he will now try and change the focus away from Modi and the Modi victory and focus on his own good work. He will say, reward me for what I have done. But he's done this in the past once. When there was a railway accident, when he was the railways minister, he volunteered. He chose to step down. It wasn't accepted, but he did volunteer to step down at that time. These, of course, are images of Narendra Modi's chopper landing at the helipad inside the Banaras Hindu University. He'll then make his way out to Lanka Chowk and then all the way to the Ghats of Varanasi, where the Ganga Aarti is planned. But before that, he'll also be visiting the Sankat Mochan temple. These are the live images from the Dashashwamedh Ghat, where the Ganga Aarti will be performed later this evening.